تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ اس تعریف کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس نے فرمایا تم کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا الا کہ انشاءاللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ انسان اپنی زندگی کے حالات و واقعات میں جو بات بکثرت دہراتا ہے وہ ہے میں اسے کل کروں گا۔ یہ اسے اس وقت دہراتا ہے جب اس کے دلی منصوبوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا پھر جب اسے ان بڑی توقعات کا خیال آتا ہے جن کے حصول میں اسے خوب دلچسپی ہوتی ہو، جیسے صحت و عافیت، تمنگری و مال و دولت، بڑا گھر، سواری اور بڑا عہدہ۔ جبکہ اسلام نے ان امیدوں اور منصوبوں کو چند آداب کے ساتھ سنوارا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور تو جب بھی بھولے تو اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کرے گا۔ ان تمام آداب اور ان کی اساس میں سب سے شاندار یہی ہے کہ جب تو کہے میں اسے کل کروں گا تو تمہارے تمام تر منصوبے اور امیدیں مشیت الہی سے جڑ جائیں، اور ساری زندگی کے مشیت الہی کے حوالے ہو جانے سے مسلمان بغیر مدد خداوندی نیکیوں بدی میں من مرضی کرنے سے بری ہو جاتا ہے، اور مسلمان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کی اصلاح و بگاڑ کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ میں اسے کل کروں گا، یہ بات کہنے کے لیے اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کسی کام کے پختہ ارادے کے وقت استخارہ کرنا، کیونکہ استخارہ کرنے سے مستقبل کی راہیں روشن، مقامات توفیق کلیئر، اور تمہاری سمت درست ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام کے لیے استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اور جب انسان پختہ ارادہ کرے اور کہے میں اسے کل کروں گا تو جان لے کہ باہمت لوگ ہمیشہ اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اور موقع ضائع کیے بغیر کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ اپنے پختہ ارادے سے نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ اپنے اہداف کے حصول میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سوانح عمری میں نفع بخش اعمال کا ایک طوفانی ریکارڈ اور کامیابی کے روشن صفحات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں اسے کل کروں گا، یہ کلمات زبانی کلامی محض ایک تمنا اور پرجوش ہمت و پر عزم عمل سے خالی ہونے تک بے قیمت رہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور اندیش اور دانا وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے موت کے بعد کے لیے کمائی کی، جبکہ وہ عاجز و بے بس ہے جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے خالی امید لگائے رکھی، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت و طاقت کے باوجود عمل نہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو سستی و کاہلی کے سپرد کرتے ہوئے اپنی عمر کے لمحات ضائع کر دی اور سواری پر سب کے پیچھے بیٹھنے اور الگ تھلگ بیکار زندگی گزارنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا کوئی بھی آدمی رزق کی تلاش چھوڑ کر قطعاً یہ نہ کہے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش کبھی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے فضل یعنی رزق کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، میں اسے کروں گا۔ یہ لفظ اور اس کا قائل اور یہ فعل اور اس کا کرنے والا کتنا ہی شاندار ہے جب وہ خوبیوں کی دوڑ میں بھلائیوں کے مقابلے اور نیکی و احسان کے کسی بھی راستے پر خرچ کرنے کے لیے پرعزم ہو۔ ارشاد باری
बारी ताला है सो तुम भलाइयों के उसूल के लिए दौड़ो, और फरमाया अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, और जो सिर्फ उन मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालात में राय लिल्लाह खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दर गुजर करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन नेकोकारों से मोहब्बत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक और अच्छे काम करना बुरे हादसात से बचाता, खुफिया सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता, सिला रहमी से उम्र में इजाफा होता है, और हर नेक काम सदका है। दुनिया में नेकी करने वाले ही आखिरत में नेकी वाले, और दुनिया में बुराई करने वाले आखिरत में बुराई वाले होंगे। और इस बारे में इस्लामी अदब यही है कि इंसान कभी ऐसी चीज का अज़म न करे जो उसकी हलाकत और बर्बादी का बायस बने, या उसे किसी रंजो गम मुसीबत और फितने की भट्टी में धकेल दे। मैं इसे कल करूंगा, तब ये किसी पाकीज़ा रूह का शानदार बोल होगा जब वो इसे जिंदगी का एक बेहतरीन नमूना और अपने नफ्स की इस्लाह, अपनी औलाद की तरबियत, अपने अमल की पायदारी, जमीन की आबादी और अपने मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए इसे निज़ाम औकात कार बनाए। इरशाद बारी ताला है, इसी अल्लाह ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने तुमको इसमें बसाया है। और जब तू कहे मैं इसे कल करूंगा और फिर तुझे कुछ इल्म, मालो दौलत और कामयाबी हासिल हो, या तुझे कोई निजात मिले, तो अदब का तकाजा तो यही है कि तू एहसान को एहसान करने वाले और इनाम को इनाम देने वाले की तरफ ही मंसूब करे। आप जरा उस नेक बंदे और नबी मुरसल के अदब पर गौर करें जिसके बारे में बताते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगा, ये मेरे रब का फजल है। आदाब इस्लाम से मुज़य्यन शख्स अगर कहे मैं इसे कल करूंगा, तो वो हमेशा अपने कौल की सच्चाई पर गामज़न रहेगा और इसका ज़ाहिर बातिन के और कौल फेल के मुआफ़िक होगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, फरमान का बजा लाना और अच्छी बात कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहे तो उनके लिए बेहतरी है। अगर कोई बंदा ये कहे मैं इसे कल करूंगा और फिर आम वादों की खिलाफवर्जी की या लोगों के साथ किए गए वादों के पूरा करने में लापरवाही की नीयत करे, तो ये शरई आदाब और तरीका नबवी के सरासर खिलाफ है। इरशाद बारी ताला, ईमानदारों अहद पैमान पूरे करो और फरमाया वादे पूरे करो, क्योंकि कौलो करार की बाज पुरस होने वाली है। और इससे भी ज्यादा संगीन ये है कि कस्में खा खा कर खरीदो फरोख्त की जाए और फिर खाश परस्ती करते हुए इन कस्मों को तोड़ दिया जाए। जैसा कि इरशाद बारी ताला, और अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कौलो करार करो और कस्मों को उनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो, हालांकि तुम अल्लाह ताला को अपना दामन ठहरा चुके हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उनको बखूबी जानता है। और जो मुसलमान कहता है मैं इसे कल करूंगा, तो वो किसी चीज को आने वाले वक्त में कतई न समझे और ना ही फैसला करने में जल्दबाजी से काम ले, क्योंकि मुस्तकबल एक ऐसा गैब है जिसका इल्म सवाए अल्लाह के किसी को नहीं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए कि आसमान और जमीन वालों में से सवाए अल्लाह के कोई भी गैमदार नहीं, मैं इसे कल करूंगा। जो शख्स ये जुमला नजूमियों, जादूगरों और बुर्जों वालों की खबरों पर एतमाद की बिना पर कहे तो वो गलत कर रहा है, और अल्लाह की पनाह यही एतमाद बर्बादी तक पहुंचा देता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी ज्योतिषी या नजूमी के पास आया और उसकी बातों की तस्दीक की, तो उसने उन चीजों का इनकार कर दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई हैं। मैं इसे कल करूंगा, ये कहना ऐसे शख्स के लिए उल्टा खसारो वबाल जान होगा जो शुबहात और शहवात में डूबा हो, क्योंकि वो ये कहकर मैं इसे कल करूंगा तौबा करने में रोजाना टाल मटोल से काम लेता रहता है, यहाँ तक कि उसे अचानक मौत आ जाएगी और फिर वो वो तो शर्मिंदगी से चिल्लाते हुए कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे वापस लुटा दे ताकि मैं अपनी छोड़ी हुई जिंदगी में जाकर नेक अमाल कर लूं। और फरमाया, काश के मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ पेश की सामान किया होता। अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे लिए कुरान अजीम को बाबरकत बनाए और उसकी आयात और जिक्र हकीम को मेरे और तुम्हारे लिए नफा बख्श बनाए। इसी पर इत्तफाक करते हुए अपने तुम्हारे और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह अजीम व जलील से तमाम गुनाहों की बख्श तलब करता हूँ। तुम भी उसी से बख्श तलब करो, बिलाशुबा वही गफूर और रहीम है। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो रहमान और रहीम और क़यामत के दिन का मालिक है। मैं गवाही देता हूँ कि
اللہ वहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, जो साबरीन का दोस्त है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला आप और आपके आलो सहाब, तमाम आलो सहाब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। हम्द व सना के बाद मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ। इरशाद बारी ताला है, और जब भी तू भूले तो अपने रब की याद कर लिया करना। भूलने की वजह से बस औकात मुसलमान अहदाफ के हुसूल में फेल हो जाता है, जबकि भूल का इलाज सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र की पाबंदी है। और जिसने कहा मैं इसे कल करूंगा और फिर अपने बुलंद मकासद के उसूल में नाकाम रहा या इंतहाई थोड़े अहदाफ हासिल कर सका, तो वो इस वजह से मेहनत करने से हरगिज न रुके, क्योंकि हर कमी रोशनी का मीनार और कोई भी नाकामी कामयाबी का पेश खैमा हो सकती है। और ऐन मुमकिन है कि जो पोशीदा है वो मिस हो जाने से बेहतर हो। लिहाजा जो तुमसे खो चुका है उस पर गमज़दा न हो, क्योंकि हादसात व वाक़यात में आम भलाई के मख्फी मकामात से बंदा बेखबर होता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की रहनुमाई करे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे लिए नफा बख्श हो उसमें खूब दिलचस्पी रखो और अल्लाह से मदद तलब करो और आजिज न बनो। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत लायक हो तो ये मत कहो अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा ऐसा होता, लेकिन यूँ कहो ये अल्लाह की तकदीर है और जो उसने चाहा वही किया। और याद रखो कि अगर मगर कहने से शैतानी अमल खुल जाता है। मुस्लिम शरीफ। अल्लाह के बंदो खबरदार रसूल खुदा पर दुरूद और सलाम भेजो, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अपनी किताब में तुम्हें इसका पाबंद करते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ मोमिनो तुम भी आप पर दुरूद और सलाम भेजो। ऐ अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाई। ऐ अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम की इज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम की इज्जत अता फरमा। कुफर और काफरों को जलील और रुसवा कर, अपने और दीन के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर। ऐ अल्लाह इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह हम जन्नत और उसके करीब करने वाले अमाल का सवाल करते हैं और जहन्नम और उसके करीब करने वाले अमाल से पनाह मांगते हैं। या अल्लाह तमाम खैर का, भलाई का और जल्दी और बदेर उनका हम सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह हमारे उस दीन की इस्लाह फरमा जो हमारी पाकदामनी है और हमारी दुनिया जो माश का जरिया है उसकी इस्लाह फरमा। अल्लाह हमारी जिंदगी में भलाई और खैर का इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह हम भलाई की चाबियां और उसके जमा करने की चाबियों का सवाल करते हैं और जन्नत के आला दर्जात का हम सवाल करते हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ मदद न करना। या अल्लाह हमारे लिए तदबीर करना, हमारे खिलाफ तदबीर न करना। या अल्लाह हमें अपने लिए अपना जिक्र शुक्र करने वाले बना। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गमों को दूर फरमा और हमारी बीमारियों को, कमजोरियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे अगले पिछले एलानिया और मख्फी गुनाहों को माफ फरमा। और अल्लाह हमारे गुनाहों को तो खूब जानता है। अल्लाह हम पर ऐसा बोझ ना लादना जिसके हम मुतहम्मिल न हो और जिसको तूने हमसे पहले लोगों पर लोड किया। ऐ अल्लाह हमें हमारी मदद फरमा काफरों के कौम के खिलाफ। या अल्लाह हम आजिज़ी इंकिसारी से, आजिज़ी बेबसी से तेरे तुझसे पनाह मांगते हैं। ऐ हय्यो कय्यूम हम तेरी रहमत से मदद का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह हमें अपने नफ्सों के सपुर्द एक लम्हे के लिए न करना, अपनी हमारी हिफाजत करना। या अल्लाह हमारे औलिया और उमूर को अपनी रजा की तौफीक अता फरमा। तमाम औलिया और उमूर मुसलमानों के हुक्मरानों के अपनी रजा के और भलाई के कामों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है तो हम पर रहम फरमा, अगर तूने रहम ना किया तो हम खसारा उठाने वाले में से। अल्लाह में दुनिया आखिरत की भलाइयां नसीब फरमा और आग के अजाब से महफूज फरमा। अल्लाह ताला अदल इंसाफ का तुम्हें हुक्म देता है, अल्लाह ताला का जिक्र करो,
وہ تمہیں یاد رکھے گا، شکر کرو وہ زیادہ دے گا، جو تم کرتے ہو اسے خوب معلوم ہے۔